आज के एपिसोड में हमने मुगल एम्पायर और सिख एम्पायर की बहुत बात की है. But while the Mughal Empire dwindled and the Sikh Empire grew strong and the Marathas grew strong in their areas, anxiously waiting were the British, who had their own ideas about how to transform India, and of course cities like Lahore. They were anxiously waiting in the wings. They were understanding, beginning to learn our languages. किसी को बहला फुसला के, किसी को डरा के, किसी को अपनी military and technological might दिखाकर उन्होंने अपनी जगह बनाई और आहिस्ता आहिस्ता हमारी लैंग्वेजेस सीखते गए. डिक्शनरीज हमारी सबसे पहली उन्होंने बनाई, हमारे मैप्स बनाए और इस एरिया को अच्छी तरह से समझा. They were the first Indian invaders that didn't come from the west or the Khyber Pass. The British established their base in Calcutta and started off the East India Company. You know how that came to control things. Perhaps it was the first corporation of the world as we know them. And then they began to transform India and Lahore, which was a major capital of the time, in their own image with educational institutions, with post offices like the GPO where I'm standing right now, railway stations. Lahore has a wonderful railway station. And all these emblematic British establishments are still there for us to see to this day. You see them all. Many people argue that the Brits shouldn't have left as early as 1947, but World War II उसी वक्त ख़त्म हुई थी. अमेरिका ने बरतानिया की खूब हेल्प की थी बरतानिया और फ्रांस की जंग से निकलने में जर्मनी के खिलाफ, और Britain and France owed them a huge debt. So the pressure was real. The Americans wanted to have a foothold in the region, something that they could counter China or a strong India or a strong Central Asia or Russian republics. They were in a hurry. Lord Mountbatten was in a hurry to go back to England and become admiral, which was his childhood dream. So partition happened in a hurry. It was supposed to happen in 48, but it happened in 47, perhaps thanks to Lord Mountbatten and the Americans who were applying a lot of pressure at that time. It was a messy partition. Millions of people fought, and you know how many people died in that. So it was a mess. And to this day, many people argue that partition perhaps should have happened a bit later, like it did in Hong Kong. The British really did care about the India that they created. They used to hope that it would last. किसी भी शहर के खाने खाने का सही मज़ा आता है किसी उस शहर के बंदे के साथ बैठकर. और आज हम स्पाइस बाज़ार आए हैं जो कि नवाबी और मुगलाई खानों के लिए बड़ा मशहूर है, और हमने आज दावत दी अपने साथ लाहौर के एक कल्चरल आइकॉन को जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा पसंद करता है. प्लीज़ वेलकम सुनील मंज. हाउ आर यू माय ब्रदर? बड़ा आपने किसी कहते हैं ना, बड़ा दिल खोल के आपने तारुफ कराया, ऊपर से लेकर नीचे तक. फॉर्मल सा, बट उसमें एक वक्त लफ्ज़ झूठ नहीं बोला हमने. माशाल्लाह, you're a quintessential Lahori and you love that identity about yourself. तो हम आपसे लाहौर के बारे में बातें करेंगे इस ज़बरदस्त खाने के साथ. लाहौर मेरी नज़र में एक ड्रीमर्स का शहर है जो बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर जाके उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं. पैशनेट लोगों का शहर है, चाहे वो अली ज़फ़र हो, चाहे वो सुनील मंज हो. अपना ख्वाब पूरा करने की लगन है इन लोगों में. दो चीज़ें मेरे ख्याल से लाहौर की सबसे ज़्यादा मशहूर हैं. एक तो ये कि लाहौरी जैसे बड़े जीदार होते हैं, दूसरा बड़े मेहमान नवाज. तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो अगला आपको सबसे पहले क्या कह रहा है, तो बैठ जाओ, चाय पियो, खाना खाओ, उसके बाद गल करा. सो हमारे कल्चर में मेरा ख्याल है खाने का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाहौर. और जो थड़ा है ना लाहौर का, जिसके आप कहते हैं कि बैठ के मोहल्ले में जो लोग बैठते हैं, कराची में कचहरी बोलते हैं कि जी इकट्ठे होना, वो भी एक लाहौर के कल्चर का हिस्सा है. बहुत बड़ा हिस्सा है. मैंने कराची में कई निहारी और पाए गए रेस्टोरेंट्स में खाना खाया. वहाँ पर संडे की सुबह को या सैटरडे की सुबह को रश होता है, मगर लाहौर में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे शौकीन लोग हर रोज आते हैं. कहते हैं लोग अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपने साथ आते हैं, और टाइमिंग में बड़े मजे मजे के होते हैं. सुबह कोई होगा कि जी सुबह 4 बजे तक मिलेगा, कोई 5 बजे तक मिलेगा, कोई करनी पड़ती है पहले से. बिल्कुल बिल्कुल, बोटी तो रोटी दोनों बुक. और ये मतलब कि हमेशा से कल्चर ही रहा है, राइट, कि साथ बैठ के नाश्ता करना, रात बैठ के नाश्ता करना. और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर देखें ना, खुशी हो गमी हो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फूड. समहाउ हमारे पंजाब में खास तौर पे कि वी थिंक थ्रू आवर स्टमक, इंडिया और पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट है पंजाब. तो यहाँ पे खाना बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. सुनील, आप अपने नाम के बारे में मुझे बताएं. आज अगर हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं, मुगलाई नाम से सीधा मेरे नाम पे अटैक हुआ है. मुझे मंज बताएं. शायद अभी तक समझ रही है कि ये आप हिंदू हेरिटेज. मैंने भी कहा है, मुझे कहा है कि अच्छा आप मंज इज फ्रॉम मंज इज सब कास्ट एंड राजपूत.
इन राजपूत राजपूतों का राज इंडिया में रह गया था, भूत सारे यहाँ गए, लेकिन तो उनमें से एक भूत ये। क्योंकि हम हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्सो वांट टू नो कि राजपूत तो इंडिया से कैसे आना हुआ फैमिली का, एनी हिस्ट्री ऑन दैट? जहाँ पे बहुत रात पार्टीशन के वक्त काफी लोग ऐसे थे जो कि वहाँ से इस साइड पे आए थे और यहाँ से वहाँ लोग गए थे। हाँ, बिल्कुल, आगे तो पीछे। मेरे दादा के जो दादा थे वो इंडिया में थे, मेरी दादी के जो वाले साहब थे वो भी इंडिया में थे। तो एक गुरदासपुर में थे, एक गुड़गांव, एक जगह दिल्ली में। गुड़गांव, बिल्कुल। तो वहाँ से जब पार्टीशन हुई थी तो फिर यहाँ पे वो लोग शिफ्ट किए थे। तो दोनों तरफ ये हुआ था कि जो यहाँ पे लोग जो वहाँ के थे वहाँ चले गए थे और यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा आ गए थे। मतलब सारे राणे जो होते हैं वो राजपूत ही होते हैं। राणे राजपूत होते, बिल्कुल। राणे राजपूत होते हैं, राव राजपूत होते हैं, राव राजपूत होते हैं। देयर यू गो। तो काफी ज्यादा कास्ट होती है, उनमें से मंज जो एक सब कास्ट है basically। नाइस। और बाकी जो मेरे नाम का वो पहला हिस्सा है वो अगेन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक बैकग्राउंड होता है इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से इंडियन नाम रखा गया था। तो दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो सुनील मान लोग समझते हैं बिल्कुल ही खुश है इंडिया से है। इंडिया से पिछले आया दिनों है। सुनील साहब गए हज करने और हज पे लोग एक दूसरे को कोनिया मार के कहते हो यार ये क्या कर रहे थे। अभी हज को छोड़े भी थोड़ी देर पहले आपके जो होस्ट हैं उन्होंने पूछा कि आपने आप हज पे क्या करने गए थे? नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला पूछा था कन्वर्ट होने मैंने। के लिए गया था। मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी स्टोरी जानने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि हम आपको क्विंटेसेंशियली लाहौर का एक पोस्टर बॉय समझते हैं, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर हम हेरिटेज के आज बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, अच्छा, लाहौर के हेरिटेज में कितने लोग वैसे आए अगर हुए आप हैं, देखें कहाँ से आए हुए हैं, कौन कौन लोग सेटल्ड तो हैं? प्री पार्टीशन लाहौर के अंदर काफी ज्यादा आपको मिलेगी सिख्स और हिंदू की काफी ज्यादा हाँ। population थी। बिजनेस कम्युनिटीज तो वही थी। इसीलिए और हिंदू आर्किटेक्चर भी बहुत जगह नजर आता है, ऐसी वॉल्ड आर्किटेक्चर। सिटी के अंदर और जो पुराने इलाके हैं जैसे मॉडल मॉडल टाउन टाउन, ये वो उनके अंदर आपको नजर आएगा। लेकिन मंदिर पुरानी- मिलेंगे बकायदा। पुरानी जो हिस्ट्री कल्चर थी उसका कौन सी ऐसी चीज़ है खाने के अलावा शायद जो रह गई हो आज भी? लाहौर के अंदर भी। हाँ, जो रह गई हो। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मॉडर्निटी आ गई मेरे है। ख्याल मॉडर्निटी आने के बाद वही जो हमने शुरू में दो चीजें बात की थी, एक ओपननेस एंड इनवाइटिंग पीपल टू फूड, दिस कल्चर इज हाँ। been वो आप one of the किसी की बात से longest चले continuities. लोएस्ट से लेके अपर क्लास तक चले जाइए, ये आपको कॉमन मिलेगा कि लोग आपको कहेंगे जी आए बैठे हैं, पहले खाना दिखाओ। वो रोटी खाना जो है ना, उसके खाने के बारे में बसंत होता था एक कुछ जमाने जगहों में, पे एक कमाल होता था परमिशन कल्चर लेने उसको। गए। अब मैं तो बल्कि कहता हूँ उसको खत्म करना चाहिए, वो कल्चरल कत्ल किया है बसंत लोगों को ने। तो बिल्कुल। और उसको खत्म करने के लिए भी उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं हमारे मुल्क में पहले इंडस्ट्री को बंद करें फिर सिख इंडस्ट्री को रिवाइव करें। इस तरह जो बसंत है, आई थिंक दैट वाज द पहले ओनली उसको बंद करें फिर उसको रिवाइव करें। हाँ, बिकॉज सिख यूनिट को करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं ना। हाँ। तो बसंत के अंदर भी इसके नीचे अगर आपके प्रोग्राम में नीचे कमेंट आ रहे हैं तो नीचे लोग लिख लेंगे ये कातिल है, ये कर रहा है। सो वो ये नहीं देखेंगे कि आपको जो चीज़ गलत है उसको रोक रहे हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों की छतों के ऊपर सीढ़ियाँ लगा के उनको पतंगबाजी से रोक रहे हो, उससे बेहतर ये है कि जो धाती डोर है उसको रोको। उसको उसको रोके खत्म कर दो। बस। पूरी दुनिया में अभी भी लोग पतंग उड़ाते हैं, अमेरिका में उड़ाते हैं, मेरा भांजा वहीं जापान में बनवा के उड़ाते लेके हैं। जाता है, उड़ाते हैं हर ऐसे जगह करके। उड़ाते हैं, आप बिल्कुल। स्पेसिफाइड एरिया करते हैं और आपका इतना बड़ा कल्चरल एक्टिविटी थी, इतना बड़ा इवेंट था। कितने लोग आते थे बिकॉज वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर ड्यूरिंग बसंत, बिकॉज लाहौर में बसंत जाना है, तो मिस नहीं करना। वो एक था हमारे हेरिटेज का, और उसके अंदर भी फूड का बड़ा कनेक्शन था। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो हर इस चीज़ चीज में में। नहीं है। इट्स वन ऑफ द क्लासिकल सिटीज ना, जिस तरह क्लासिकल शहर होते हैं, लंदन होता है, रोम होता है, लाहौर है, दिल्ली है, ये अपनी ट्रेडिशन से हटना भी नहीं, पसंद नहीं, नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रेडिशन है भाई, मेरे दादा ने इसी जगह पे खिलाया था लोगों को, मैं भी इसी जगह पे खिलाऊंगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग टू मच। लाहौर में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे क्योंकि खाने के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी से जब टाइम भी करेंगे तो उसका टाइम खाने के पहले ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ खाना ਖਾਣੇ खाने फिर उसके ਦੁਪਹਿਰ बाद- ਦੇ ਖਾਣੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। You would never find people giving you appointment in Karachi over this. राइट। हालांकि आई कॉल कराची द फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनका जो है ना वो बस खाना इधर है, Time हमारे नहीं, यहाँ time बस नहीं। दिमाग पे खाना रहता है। मगर आप कराची में भी एक बंदे को जानते हैं जिसके दिमाग पे सिर्फ खाने खाना का रहता है और वो और मैं मिलके इकट्ठे खाने खाते हैं। क्योंकि वो है ना पार्ट लाहौरी। हाँ, पार्ट लाहौरी। पार्ट लाहौरी तो है। मैं आपके लाहौरी एक्सेंट के लिए रेडे आता है आपको? हाँ, रे रेडे आना जरूरी है लाहौरी के लिए। लौड़ी। लाहौरी। मैं नकल तो किसी भी चीज की उतार लेता हूँ, बट मैं हाँ, अच्छा, आप क्या क्या देखेंगे और हम क्या क्या खाएंगे ये देख हम लेते सबसे हाँ, पहले तवा चिकन मैंने मंगाया, I want to try that। हैं। चिकन जो है वो चिकन तो मैं वैसे कहता हूँ कि चिकन जो है ना वो तो बेचारा खुद अपनी टांगों पे नहीं खड़े हो सकता, नहीं हो उसको सकता। खाने मैं तो के 15 साल से नहीं खाया। खाना होता है मटन, कोई बिल्कुल, बीफ, बिल्कुल। वैसी चीज। Actually, I'm giving my stomach some जॉइंट rest। रोस्ट है, which I really like over ये here। देखे ना, इसमें पावर जैसे कहते हैं ना ताकत का मुहावा। मुझे बचपन में एक चिकन अंकल ने है, कहा था उसमें- कि भाई तू बैल वैल खाएगा तो तेरे में जान है कि कुकर शुकर खाने से क्या होगा। कुकड़ में ज्यादा बात खुद ज़हन में अपनी बैठी। टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल, आजकल का अगर देसी हो तो ठीक है। अच्छा जी, किधर की? आप देसी कुकड़ अमेरिकन देखें, सही है, कोई नहीं। योर इम्यून सिस्टम विल बीट इट। I also think Lahore was a city जहाँ पे you could be a little slow with your thought process, you had time to reflect, so you had time to create.
म्यूजिशियंस निकले, उनके गाने अच्छे थे, लिरिक्स अच्छी होती थी, किताबें लिखी जाती थी, क्योंकि कराची में एक हब्बड़ दब्बड़ मची होती है, एक इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। तो लाहौर के लोगों को आज भी, जैसे हमारी दोस्त की वालदा हैं, वो संगीत वीणा बना रही हैं, वो बनाए जा रही हैं, वो 20 साल से एक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रही हैं, म्यूजिक बन रहा है, लिरिक्स, that time again to sit, People have time, yes. they have time. And people make time also for the things that they care about. मेरे ख्याल से ओल्ड हॉल में था ना जो थर्ड वाला सीन था कि सामने शाम को इकट्ठे बैठना है, जब सामने बैठेंगे तो सारे एक दूसरे के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, आपको पता होगा ये किसके खुशी क्या है, मुझे पता होगा इसका गम क्या है। अब वो नहीं है। तो वो एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जो है ना विद दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ सिटी, वो एक नेगेटिविटी मुझे लगता है, नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि कल्चर थोड़ा उस लिहाज से बोलिए। लेकिन हम लाहौर वो रहा नहीं है ना, बड़ा हो गया, वो शहर बन गया। पुराने इलाकों में भी करते हैं। Initially it wasn't a big city. That's my kulfi. Ooh, Look at the package. this is looking too hygienic. बहुत साफ लग रहा है। ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ें जो है ना मुझे तो नहीं मज़ा नहीं आता। गंदी चीज़ होनी चाहिए ना। हाँ, थोड़ा सा तो होना चाहिए। थैंक यू सो मच, Thank you for इट वाज inviting सच अ me, प्लेजर। आपसे हमेशा मिलके बहुत अच्छा लगता है। आई एम बहुत सो शुक्रिया ग्लैड बुलाने के लिए। कि इतने सालों के बाद आपकी मेरी भी थोड़ी सी दोस्ती होगी और मैं फैज़ान के बगैर भी आपको मैसेज करके एक दो सवाल पूछ सकती हूँ, यू नो। बट थैंक यू सो मच फॉर द लाहौरी फीलिंग, मुझे मज़े से जो आती है My हमेशा। friend is an icon of the car world. He's a Lahori and a quintessential Lahori.